actually hard to find biblical scholars with whom to compare John Goldingay. It's also difficult to sort out the kinds of adjectives you might use to describe John Goldingay, in large part because we live in an age of specialization, and yet here is a scholar who has the grasp of biblical studies, Old and New Testament, and the theology that surrounds them. Here's a biblical scholar whose profound level of scholarship is forever in the service of the church. Here's a biblical scholar who never forgets that the chief aim of good biblical scholarship is proclamation, the incarnation of the Word in people's lives. In fact, one of the most impressive parts of John Goldingay's scholarship is his non-apologetic, non-defensive approach to reading Scripture as a believer firmly embedded in the church. Having worked with him these several years, having stood with him shoulder to shoulder, what I can tell you is that he is as advertised. Daniel chapter 5. One evening, King Belshazzar gave a great banquet for 1,000 of his highest officials, and he drank wine with them. He got drunk and ordered his servants to bring in the gold and silver cups his father Nebuchadnezzar had taken from the temple in Jerusalem. Belshazzar wanted the cups so that he and all his wives and officials could drink from them. When the gold cups were brought in, everyone at the banquet drank from them and praised their idols made of gold, silver, bronze, iron, wood, and stone. Suddenly, a human hand was seen writing on the plaster wall of the palace. The hand was just behind the lampstand, and the king could see it writing. He was so frightened that his face turned pale, his knees started shaking, and his legs became weak. The king called in his advisors, who claimed they could talk with the spirits of the dead and understand the meanings found in the stars. He told them, "The man who can read this writing and tell me what it means will become the third most powerful man in my kingdom. He will wear robes of royal purple and a gold chain around his neck." All of King Belshazzar's highest officials came in, but not one of them could read the writing or tell what it meant, and they were completely puzzled. Now the king was more afraid than ever before, and his face turned white as a ghost. When the queen heard the king and his officials talking, she came in and said, "Your Majesty, I hope you live forever. Don't be afraid or look so pale. In your kingdom, there is a man who has been given special powers by the holy gods. When your father, Nebuchadnezzar, was king, this man was known to be as smart, intelligent, and wise as the gods themselves. Your father put him in charge of all who claimed they could talk with the spirits, or understand the meanings in the stars, or tell about the future. He also changed the man's name from Daniel to Belteshazzar. Not only is he wise and intelligent, but he can explain dreams and riddles and solve difficult problems. Send for Daniel, and he will tell you what the writing means." When Daniel was brought in, the king said, "So, you are Daniel, one of the captives my father brought back from Judah. I was told that the gods have given you special powers, and that you are intelligent and very wise. Neither my advisers nor the men who talk with the spirits of the dead could read this writing or tell me what it means. But I've been told that you understand everything and that you can solve difficult problems. Now then, if you can read this writing and tell me what it means, you will become the third most powerful man in my kingdom. You will wear royal purple robes and have a gold chain around your neck." Daniel answered, "Your Majesty, I will read the writing and tell you what it means.
but you may keep your gifts or give them to someone else. Sir, the Most High God made your father a great and powerful man, and brought him much honor and glory. God did such great things for him that people of all nations and races shook with fear. Your father had the power of life or death over everyone, and he could honor or ruin anyone he chose. But when he became proud and stubborn, his glorious kingdom was taken from him. His mind became like that of an animal, and he was forced to stay away from people and live with wild donkeys. Your father ate grass like an ox, and he slept outside where his body was soaked with dew. He was forced to do this until he learned that the Most High God rules all kingdoms on earth and chooses their kings. King Belshazzar, you knew all of this, but you still refused to honor the Lord who rules from heaven. Instead, you turned against him and ordered the cups from his temple to be brought here, so that you and your wives and officials could drink wine from them. You praised idols made of silver, gold, bronze, iron, wood, and stone, even though they cannot see or hear or think. You refused to worship the God who gives you breath and controls everything you do. That's why he sent the hand to write this message on the wall. The words written there are Mimi, which means numbered, Tekel, which means weighed, and Parsin, which means divided. God has numbered the days of your kingdom and has brought it to an end. He has weighed you on his balance scales, and you fall short of what it takes to be king. So God has divided your kingdom between the Medes and the Persians. Belshazzar gave a command for Daniel to be made the third most powerful man in his kingdom and to be given a purple robe and a gold chain. That same night the king was killed. Then Darius the Mede, who was 62 years old, took over his kingdom. दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। बेलशत्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए जेवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशत्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूखदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें ले आओ, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे दाख मधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह अपने सोच विचार में घबरा सा गया, और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए, और कपीते कांपते उसने घुटने एक दूसरे से लगने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबुल के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाया जाएगा, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा ने सब पंडित लोग भीतर तो आए, परंतु उस लिखे हुए को पढ़ न सके, और न राजा को
उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और वह भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। राजा और प्रधानों के वचनों का हाल सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, मन में न घबरा और न उदास हो, क्योंकि तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि उसमें पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा कि क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तो तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे तो उस बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो मैं तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाया जाएगा और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास ही रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। मैं वह लिखी हुई बात राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसको वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसको वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। निदान जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज्य सिंहासन पर से उतर गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई और वह मनुष्य में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया और वह बैलों की नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओर से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है, यद्यपि यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते, न सुनते, न कुछ जानते हैं, उनकी स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। यही वह हाथ का एक भाग उसी ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। और जो शब्द लिखे गए हैं अर्थात मने मने तकेल उपसिन, इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, तू
मानो तराजू में तौला गया है और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाया गया और ढिंढोरियों से उससे विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात को कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। Belshazzar is somebody who needs to take more responsibility for the position that he holds in succession to Nebuchadnezzar. बेलशास्शार एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सचमुच में नबूखदनेस्सर से भी ज्यादा जिम्मेदारी दी गई थी उसको। Belshazzar was the last ruler before the Persian Empire took over the Babylonian Empire. और बेलशास्शार जो था वो पर्शिया का राज्य जब बेबीलोन के राज्य के ऊपर आया उसके पहले का वो आखिरी राजा था बेबीलोन का। The story describes Belshazzar as the son of Nebuchadnezzar, which he wasn't literally, but he was Nebuchadnezzar's effective successor, so he could be thought of as kind of like Nebuchadnezzar's son. और यहाँ पर हम देखते हैं इस कहानी के अंदर बेलशास्शार को नबूखदनेस्सर का बेटा कहा गया है। दरअसल में वो बेटा नहीं था, परंतु ऐसा कह सकते हैं कि नबूखदनेस्सर के बाद जो राजा बना, जो शायद नबूखदनेस्सर के बहुत ही करीब का होगा, और ऐसे संदर्भ को लिखकर वहां पर शायद लिखा होगा कि वो नबूखदनेस्सर का बेटा था जो आगे जाके बेबीलोन का राजा बना। The other person who plays a key role in the story alongside Daniel and Belshazzar is the queen. और दूसरी जो एक पात्र है जो दानियल और बेलशास्शार के साथ में इस पूरी कहानी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो रानी है, राजमाता है। The queen is the queen mother, the wife of a previous king. और ये जो रानी है वो राजमाता है जो इसके पहले के जो राजा थे उसकी पत्नी। The queen mother is often a politically influential person in a Middle Eastern court. और किसी भी पूर्व के राज्य के कोई भी सभा के अंदर या फिर कोई भी कचहरी के अंदर ये जो राजमाता है वो राजनीतिक तौर से बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थी। The story may imply that she was Nebuchadnezzar's widow, who'd be in a position to give good advice to the king, as she does. और यहाँ पर ये कहानी में से हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो शायद जो राजमाता थी वो नबूखदनेस्सर की ही विधवा थी और वो एक ऐसी परिस्थिति में थी, ऐसी जगह पर थी जहां पर वो सलाह दे सकती थी और जहां पर वो सिखा सकती थी वहां उस कचहरी के अंदर। Belshazzar was having a good time as king. They have a great banquet. और यहाँ पर हम देखते हैं बेलशास्सार के समय में वो एक राजा के तौर पे बहुत ही आनंद से वो राज कर रहा था। वो उसके समय में मेजबानी चल रही थी। A state banquet led to some action that will have seemed quite ordinary to the Babylonians. और ये जो राज्य की जो मेजबानी थी उससे शायद लोगों के लिए बहुत ही साधारण सी बात ये हो गई थी। अब When an army wins a victory, it takes plunder and it shows off the plunder on an occasion like a state banquet. और जब भी कोई सेना जो है, जब भी कोई राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करके विजय प्राप्त करता है, तब वो जो सेना जो है, जो भी लूट के लाई गई चीजें हैं, उस लूट की हर एक चीज को वो सबके सामने वो रखते हैं इस प्रकार के राज्य के मेजबानियों के अंदर। So on this occasion at the state banquet, they show off the vessels that had been taken from Jerusalem. तो ऐसे इस प्रकार के राज्य के मेजबानियों के अंदर वो लोग जो है, जो सेना जो है, वो यरूशलेम से जिन बर्तनों को वो लेके गए थे उन सब का प्रदर्शन करते हैं सबके सामने। But that means that these vessels are no ordinary plunder. They are things that came from the temple of the real God. परंतु इसका मतलब ये है कि ये जो बर्तन अभी है वो कोई साधारण बर्तन नहीं है, क्योंकि ये जो बर्तन है वो तो परमेश्वर यहोवा के मंदिर के बर्तन है। And mysteriously, while the banquet is going on, there appears some writing on the wall.
और रहस्यमय बात एक और अभी हमारे सामने जो आएगी वो ये है कि जब इन बर्तनों को प्रदर्शित किया जाता है तब एकदम से एक दीवार के ऊपर एक रहस्यमय वाक्य लिखा हुआ वहां पर आता है. We have a saying in English raising the question whether you can read the writing on the wall, and that's where this story comes. That's where this story is where that phrase comes from. और इंग्लिश के अंदर एक ऐसा कहावत भी है कि एक वाक्य को जैसे दीवार पे लिखा गया हो, और ये जो दानियल के पुस्तक के अंदर जो कहानी लिखी गई वहां से इस कहावत को बनाया गया है. So some writing appears on the wall of the hall where the banquet takes place, and nobody can read it. और ये जो वहां पर जो मेजबानी चल रही थी लोगों की, उसके अंदर एक बड़ी सी दीवार के अंदर ये एक वाक्य लिखा गया आता है और उस वाक्य को कोई भी पढ़ नहीं पाता. इसका मतलब क्या है? Maybe the reason why they can't read it is because it's only consonants. और शायद वो लोग इसलिए नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि उस शब्द के अंदर कोई भी प्रकार की आवाज या फिर जो अलग एक प्रकार की जो कक्का जो है, बारखड़ी जो है, उन शब्दों का ही अ ई का ही उपयोग किया गया था वहां पर. That is, in Hebrew, there are consonants and then there are vowels. And normally in writing Hebrew, you only write the consonants. हिब्रू भाषा के अंदर एक जो विशेष बात है वो ये है कि हिब्रू भाषा जो है यह एक है व्यंजन और दूसरा है कि स्वर वर्ण और व्यंजन, इन दोनों भागों में हिब्रू भाषा बटी गई है. यदि आप हिब्रू समझ पाते हैं तो ही शायद आप उसको पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे. So they can maybe read the letters on the wall, but they can't make sense of what they mean. इसका मतलब है कि वो लोग शायद वो जो अक्षर लिखे गए हैं दीवार के ऊपर वो पढ़ पाएंगे, परंतु उसका मतलब वो नहीं समझ पाएंगे. But Daniel has some supernatural insight that enables him to read the words out. परंतु दानियल को वहां पर एक दैवीय ज्ञान प्राप्त होता है जिससे वो उस वाक्य को, उन शब्दों को वहां पर वो पढ़ पाता है और समझ पाता है. And he tells the king that the words say many, many, tekel and parsin. और फिर वो वहां पर वो कहता है राजा से कि उस शब्दों में वहां पर लिखा था कि मैनी मैनी टक्केल पाशिन. And Daniel is able to explain to the king that what that means is God has numbered the days of your kingdom and brought it to an end. और वहां पर वो दानियल उसका मतलब बताता है कि परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन के रखे हैं और उसका अंत आया है अभी. You have been weighed on the scales and found wanting. और तुम्हें उस संतुलन के ऊपर तुम्हें तोला गया है और तुम्हें पर्याप्त, मतलब अभी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा काम वहां पर खत्म हो गया है. Your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. और वहां पर तुम्हारा जो राज्य है वो अभी बट जाने वाला है और दूसरे देश वालों को वहां पर वो दे दिया जाएगा. But Belshazzar takes no notice. परंतु बेलशास्सार जो है यहाँ पर इस बात पर ध्यान नहीं देता है. So this story about one king complements goes along with that other story about an earlier king. तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो दूसरे राजा की जो बात यहाँ पर लिखी गई थी वो फिर से एक बार पहले राजा की जो बात थी उसको यहाँ पर पुनरावर्तन यहाँ पर दिखा जाता है हमें. This warning to Belshazzar was like the warning to Nebuchadnezzar. और ये जो चेतावनी बेलशास्सार को दी गई थी वैसे ही आगे हम देखते हैं कि नबूखदनेस्सर को भी ऐसी चेतावनी दी गई थी. But Belshazzar pays the price for disdaining the true God and failing to respond to that God's warning. परंतु बेलशास्सार जो है वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का नकार करने के लिए और उसकी वाणी न सुनने के लिए उसकी वो कीमत चुकाता है. Both these two stories in different ways make warnings to leaders and also give insight to the people who have to serve them. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो दोनों राजाओं की कहानी थी जिसके अंदर परमेश्वर की ओर से चेतावनी मिलती है वो हमें अलग अलग प्रकार का ज्ञान देती है और अगुवाई किस प्रकार से हमें करनी चाहिए इसके लिए भी हमें पर्याप्त ज्ञान देती है. That's the end of our study of chapter 5.
और ये 5वें अध्याय के हमारे अध्ययन का अंत है।